Christian author Elizabeth Elliot said something very beautiful. मसीह लेखिका एलिजाबेथ इलियट ने कुछ सुंदर कहा है। She said, fear arises when we think everything depends on us. उन्होंने कहा कि भय हमें तब आ जाता है जब हम सोचने लग जाते हैं कि सारी बातें हम पर निर्भर है। Whenever we faced up with troubled situations and circumstances, जब कभी भी हमको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता as a है human being, मानव होने के नाते, our response is cowering in fear. हमारी प्रतिक्रिया ये होती है कि हम भयभीत हो जाते हैं। This morning that the Lord Almighty want to teach us a lesson or two from the life of David, who faced much difficult situations. इस सवेरे के बाद परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं दाविद के जीवन के जरिए, उनके जीवन में उन्होंने भय का सामना किया, But he overcame them with a certain attitude. लेकिन भय का सामना जो है उन्होंने अपने रवैये के जरिए किया। This morning I want us to quickly open our Bibles to Psalm 27. इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं भजन संहिता को खोलेंगे, भजन संहिता 27। I want all of us to read this entire psalm, ये पूरे भजन संहिता को हम पढ़ेंगे, but we're going to pick some of the portion of this psalm इस भजन संहिता के चंद भागों को हम देखने to वाले हैं। learn something amazing for our study this morning. इस सवेरे के वक्त हमारे अध्ययन के लिए हम कुछ अद्भुत सीखेंगे। Look at the way that it starts. Psalm 27 starts with a very beautiful thing. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? David questions and asks, whom shall I fear? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? दाविद ये प्रश्न पूछते हैं। Further down he says that the Lord is my strength of my life. Of whom shall I be afraid? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? He is not speaking to himself. वो अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं। He is speaking to the forces of darkness that are trying to scare him. वो अंधकार की शक्तियों से बात कर रहे हैं जो उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं। He is trying to speak to the forces of darkness that are trying to make him to cover up with fear. अंधकार की शक्तियों से वो बात कर रहे हैं जो उनको भय में डालने का प्रयास कर रहे He हैं। questions and asks, whom shall I fear and whom shall I be afraid और of? वो प्रश्न पूछते हैं कि मैं जो है किससे डरूं और मैं किसका भय खाऊं? Life is filled with moments of fear. और देखिए जीवन में ऐसे कई पल होते हैं जहाँ पे भय का सामना करना पड़ता These है। induced moments of fear should be faced and overcome by bold declarations, just the way that David did. और देखिए ये भय का सामना, जब भय अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो इसका सामना जो है बहुत ही साहस के साथ करना है और साहस की बोली बोल कर करना है। If you allow the fear to grip you unchecked, it will steal away your inner peace. और देखिए यदि आप होने देते हैं कि भय आपको ग्रस्त कर ले तो आपकी अंदरूनी शांति जो है आप खो देंगे। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। David slammed the door on the face of fear by doing some things. और देखिए दाविद ने दरवाजे को बंद कर दिया, उस भय के मुंह पर ही उन्होंने बंद कर दिया दरवाजे को चंद बातों को कर। He said what he says in verse 3, my heart shall not fear, though war may arise against me, in this I will be confident, he says. तीसरे वाक्य में दाविद कहते हैं, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। Every single morning you see the fear standing at your doorsteps. हर सवेरे के वक्त जो है आपके दरवाजे के पास आप देखते हैं कि भय खड़ा है। Either you open the door and welcome it, या तो आप दरवाजा खोलते हैं और उसका स्वागत करते हैं, अंदर आने देते हैं, or slam the door on the face of fear या फिर उस भय के मुंह पर ही दरवाजे को मार देते with हैं। bold declaration, the way that David did here in this और देखिए place. साहस की बोली को बोलकर जिस रीति से दाविद ने यहाँ पे किया हुआ है। If you strongly make a confession like that अगर आप जो है ये अंगीकारों को करते हैं and walk back with a certain understanding, और आप जो है एक समझ के साथ चलते हैं, you know, everything about you will change. आपके बारे में सारी चीजें बदल जाएंगी। I want us to look at verse 4, wherein we can see how David faced fear with prayer. और हम जो है चौथे वाक्य को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे दाविद ने भय का सामना जो है प्रार्थना से किया। It says here in verse 4, I have asked from the Lord.
लिखा हुआ है, दाविद कहते हैं कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। Listen to this. It says, I have asked from the Lord. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। You and I need to make a prayer. That's very, very important. आपने और मैंने प्रार्थना करना है, बहुत ही जरूरी आवश्यक है। Our response to every difficult situation is going on our knees. और देखिए, हमारी प्रतिक्रिया हर एक कठिन स्थिति परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि हमने घुटनों पर आना है। When we bow down before God, we will not bow down before any और man. देखिए, जब हम परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आ जाते हैं, परमेश्वर के सामने हम झुक जाते हैं, तो हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। When our response is going before God, जब हमारी प्रतिक्रिया ये होती है कि हम परमेश्वर के सामने जाते the हैं, enemy will just disappear from before us. तो हमारे सामने से शत्रु जो है वो गायब हो जाएगा। So number one resort that David took up to was prayer. सो पहली बात जो दाविद ने किया, उन्होंने प्रार्थना की। Number two, that he picked up a vision. और दूसरी बात, उन्होंने दर्शन को उठाया। The same verse further down, it says very beautifully. It says, to behold the beauty of the Lord. और लिखा हुआ है कि मैं यहोवा की मनोरता को दृष्टि या मनोरता पर दृष्टि लगाए रखूं। Listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा। Set your eyes on God. Don't set your eyes on the problem. और देखिए, अपनी दृष्टि यहोवा पर रखिएगा, समस्या पर मत रखिएगा। As long as your vision is focused on God and not on the enemy, not on the situations and circumstances, you will see every difficult thing melt away like wax. और देखिए, जब तक कि आपकी दृष्टि जो है यहोवा पर है, शत्रु पर नहीं है, स्थिति परिस्थिति पर नहीं है, तब जो है क्या होगा कि सारी स्थिति और परिस्थिति जो है मोम की तरह पिघल जाएगी। Further down it says, we can see that how he depended upon God and his word. और देखिए, आगे चलकर हम देखते हैं कि कैसे दाविद जो है परमेश्वर पर, यहोवा पर और उनके वचन पर निर्भर रहे। He says, I meditate in his temple. और लिखा हुआ है, मैं उनके मंदिर में ध्यान किया करूं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Your body is the temple of the Holy Spirit. आप और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। All you need to do is nothing but just go down on your knees before God. आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपने घुटनों पर आ जाइएगा, परमेश्वर के सामने झुक जाइएगा, Bring your supplications before God. अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने ले आइएगा, Behold his beauty. उनकी सुंदरता, उनके मनोरता को देखिएगा, And then make a confession based on his word. और उनके वचन पर आधारित जो है आप कबूली को कीजिएगा। By meditating on his word. उनके वचन पर मनन कर कर। Many of us do not meditate on his word. हम में से बहुत लोग परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते The हैं। key to defeat every fear comes when you meditate on the word. और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भय को आप खदेड़ दे, तो चाबी ये है कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें। The word strengthens us from within. और देखिए, वचन हमको अंदर से ताकतवर बनाता है, Fills us with 100 elephant strength. हमको जो है मानो 100 हाथियों का बल आ जाता है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, meditation on the word of God has so much of power. और देखिए, वचन पर जब हम मनन करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा सामर्थ होता है। I'm telling you, nothing that the enemy can ever do against you if you get down to the business of meditating on the और word. देखिए, शत्रु कुछ नहीं कर सकता है आपको लेकर, जब आप जो है परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। Further down he says in verse 5 very beautifully, 5वें वाक्य में बहुत सुंदर लिखा हुआ he है, seeks God's protection. अब वो परमेश्वर की सुरक्षा के लिए देखता है। He says, in the day of trouble, he will conceal me. लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेंगे। You know what it means? It is to say that he will hide me under his pinions. इसका मतलब ये है कि वो हमको अपने पंखों के नीचे छिपाएंगे। I will be safe in this pavilion. और देखिए, वो अपने मंडप में मुझे छिपाए रखेंगे, He will hide me in his strong tower. अपने मजबूत गढ़ में वो हमको छिपाए रखेंगे। God's protection is available to us provided that we put our mind to it. परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए उपलब्ध है अगर हम अपने मन को वहां पे लगाते हैं। Verse 6 very beautifully says, I will sing. लिखा हुआ है, मैं गाऊंगा। Hey, worship again has the power to bring down the presence of God
into your situation, circumstance. देखिए भजन गाना उसके वजह से परमेश्वर की उपस्थिति हमारी स्थिति परिस्थिति में आ जाती है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, try singing unto the Lord in the midst of troubled times. संकट के समय में आप ये प्रयास कीजिएगा कि आप स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, गीतों को गाएं, भजन को गाएं। When your loved ones are still in the ICU, और देखिए जब आपके प्रियजन आईसीयू में है, don't think where the money is coming आप from. ये ना सोचिएगा कि पैसे कहाँ से आएगा। Don't think how this person is going to fare. आप ये ना सोचिएगा कि क्या होने वाला है। All you need to do is nothing but just go down on your knees and praise God and call God into that situation, circumstance. आपको यही करना है कि आप घुटनों पर जाइएगा और परमेश्वर की स्तुति गाइएगा, भजन को गाइएगा और परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पे आप ले आइएगा। Paul and Silas knew this key to the deliverance. पौलुस और साइलस इस बात को जानते थे, ये चाबी को जानते थे, छुटकारे की चाबी They को। did not fret and fear. They went on praising God. वे डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करते रहे, भजन गाते रहे। In the times of troubles, lift up your voices and praise God. संकट के समय में अपनी आवाजों को उठाइएगा और परमेश्वर की स्तुति गाइएगा, उनके गुणों को गाइएगा। Then further down in the verses, और आगे वाक्यों में लिखा हुआ है, we can see very beautifully how David rests in the Lord. अब बहुत ही सुंदर रीति से हम देख सकते हैं कि कैसे दाविद यहोवा में विश्राम करते हैं। He says, wait for the Lord. और वो कहते हैं कि परमेश्वर पर बने रहो, रुके रहो। He says, wait for Him. उनके लिए रुके रहो। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, you and I need to learn to rest in Him. और जरूरी है कि हमने और आपने परमेश्वर में विश्राम करना है। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, when we praise, जब हम स्तुति करते हैं, when we meditate on His Word, जब हम उनके वचनों पर मनन करते हैं, when we boldly declare, जब हम साहस के साथ ये साहस की बोलियों को बोलते हैं, and when we rest in the और Lord, जब हम परमेश्वर में विश्राम करते हैं, I'm telling you, you're putting the enemy to shame. मैं आपसे कहूँ कि शत्रु जो है आपको लेकर शर्मिंदा होगा। He will look at you and you will wonder what kind of a man, what kind of a woman is this. आपकी ओर देखकर वो सोचेगा कि कैसे प्रकार की स्त्री पुरुष है। You will be filled with the Spirit of God. पवित्र आत्मा से भरे हुए आप रहोगे। You will be stronger and you will be able to crush the head of the enemy. आप बलवंत होते जाओगे और शत्रु के सिर को कुचल पाओगे। And then he will not keep quiet. और फिर वो चुप नहीं रहेगा। He will try to attack and you have to face him in two ways. और वो आक्रमण करने का प्रयास करेगा और उसका सामना आपने दो प्रकार से करना Verse 14 says something very beautiful. 14वें वाक्य में कुछ सुंदर It लिखा हुआ says, let your heart take courage, it says. है। लिखा हुआ है कि हियाव बांधो। Listen to this, you need to be determined. देखिए आपने अपने मन को बना लेना है। That you need to be determined that you will continue close to God. You will not depart from His presence. आपने अपने मन को बना लेना है कि आप परमेश्वर के बिल्कुल ही निकट और नजदीक बने रहेंगे, उनकी उपस्थिति से आप दूर नहीं The जाएंगे। enemy will bring many distractions to you. शत्रु जो है आपके ध्यान को भटकाने के लिए बहुत सारी चीजों को करेगा। He will send many thoughts to your mind. आपके मनों में बहुत सारे विचारों को वो भेजेगा। Those thoughts try to melt away the courage that is in you. और देखिए वो विचार में ये क्षमता होती है कि आपके उस साहस को वो पिघला दे। Stay determined. लेकिन मन को बना लीजिएगा, Just the way that David stayed determined. ये आपको बांधे रखेगा। He said कि until I get to where God wants me to. जैसे दाविद ने किया, उन्होंने कहा कि जब तक कि मैं वहां पे न पहुंचूं जहां पे परमेश्वर चाहते हैं कि मैं पहुंचूं, I will never cease praising this God. मैं इस परमेश्वर की स्तुति करना बंद नहीं I will करूंगा। never cease looking unto Him, receiving His strength. मैं उनकी ओर देखना बंद नहीं करूंगा, उनसे उस बल को प्राप्त करना जो है मैं बंद नहीं करूंगा। If you stay determined like that, अगर आप जो है हियाव को बांधे रहते हैं, the Lord shall fill you with much courage. परमेश्वर आपको बहुत साहस से भर देंगे। That courage to fight against the enemy. वो साहस कि आप शत्रु के साथ में या शत्रु के विरुद्ध में आप लड़ सकें। That courage that you need in the battlefield. वो साहस जिसकी जरूरत आपको पड़ जाती है जब आप रणभूमि में होते हैं। Then you will experience the peace of God that descends upon you. और फिर आप परमेश्वर की शांति का अनुभव करेंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, enemy is not happy the way that you're going. और जिस रीति से आप बढ़ रहे हैं, शत्रु खुश नहीं है। He will not be happy. वो खुश नहीं होगा। He will try to work against वो you. प्रयास करेगा आपके विरुद्ध में काम करने के And लिए। his first resort is और पहली बात जो वो करता है, by sending fear to you. वो भय को भेजता है। It could be a fear of losing job, नौकरी खोने का भय, losing business, व्यवसाय खोने का भय, losing health,
स्वास्थ्य खोने का भय, losing a very precious relationship. एक बहुत ही मूल्यवान संबंध को खोने का भय। Whatever the fear may be, जो कुछ भी भय क्यों ना हो, fight it with these things. इन बातों के साथ लड़िएगा। As you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं, just the way that David came out with flying colors, जिस रीति से दाविद जो है विजयी होकर बाहर आए, you too will come up with flying colors in the name of आप Jesus. भी विजयी होकर बाहर आएंगे यीशु के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित With रखे। this, start your week. और इसके साथ आप अपने सप्ताह की शुरुआत कीजिएगा। God will be with you. परमेश्वर आपके साथ में बने रहेंगे। You stay blessed. आप आशीषित रहिएगा।